रोशनाई की जगह चाय के तुंद तेज गरम अख से अपने नफ्साए सर्द सफ़े करतास पर नक्श कर रहा हूं। तबीयत अफसुर्दा होती है तो अल्फाज भी अफसुर्दा निकलती हैं। मैं तबीयत की अफसुर्दगियों का चाय के गर्म जामों से इलाज किया करता हूं। आज कलम को भी एक घूंट पिला दिया। आज कलम को भी एक घूंट पिला दिया। The acceptance of cabinet mission plan by both the Congress and the Muslim League was a glorious event in the history of the freedom movement in India. It meant that the difficult question of Indian freedom had been settled by negotiations and agreement, and not by the methods of violence and conflict. It also seemed that the communal difficulties had been finally left behind. Throughout the country, there was a sense of jubilation, and all the people were united in their demand for freedom. We rejoiced, but we did not then know that our joy was premature, and bitter disappointment awaited us. वो चीनी चाय जिसका आदी था कई दिन हुए खत्म हो गई और अहमदनगर और पूना के बाजारों में कोई इस जिन से गिरा माया से आशना नहीं। मजबूरन हिंदुस्तान की उसी स्याह पत्ती का जो शानदार पी रहा हूं, जिसे लोग चाय के नाम से पुकारते हैं और दूध डाल के इसका गर्म शरबत बनाया करते हैं। लोग चाय में दूध डालते हैं। लोग चाय में दूध डालने की जगह दूध में चाय डालने लगे हैं। हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। मैं चाय को चाय के लिए पीता हूं, लोग शक्कर और दूध के लिए पीते हैं। मेरे लिए वो मकासद में दाखिल हुई, उनके लिए वसाइल में। गौर फरमाइए मेरा रुख किस तरफ है और जमाना किस तरफ जा रहा है। एक मुद्दत से जिस चीनी चाय का आदी हूं वो व्हाइट जास्मीन कहलाती है, यानी यास्मीन सफेद, या ठेठ उर्दू में यूं कहिए गोरी चमेली। इसकी खुशबू जिस कदर लतीफ है उतना ही कैफ तुंद और तेज है। रंगत की निस्बत क्या कहूं, जवाहरलाल बिलाशुबा चाय के आदी हैं। The Muslim League Council had accepted the cabinet mission plan. So had the Congress Working Committee. The situation had now returned to normal. The question naturally arose that there should be fresh Congress elections and a new president chosen. Jawaharlal's statement came to Mr. Jinnah as a bombshell. He immediately issued a statement that this declaration by the Congress president demanded a review of the whole situation. The Muslim League Council met at Bombay on 27th July. Mr. Jinnah, in his opening speech, reiterated the demand for Pakistan as the only course left open to the Muslim League. This was perhaps the greatest blunder of my political life. I have regretted no action of my life so much as the decision to withdraw from the presidentship of the Congress. My second mistake was that I did not support Sardar Patel. He would have never committed the mistake of Jawaharlal, which gave Mr. Jinnah the opportunity of sabotaging the plan. I can never forgive myself when I think
that if I had not committed these mistakes, perhaps the history of the last 10 years would have been different. मैं आपको बतलाऊं, मेरी जिंदगी में ऐश जिंदगी का सबसे बड़ा तसव्वुर क्या हो सकता है? जाड़े का मौसम हो, रात का वक्त हो, आतिशदान में ऊंचे ऊंचे शोले भड़क रहे हो और मैं कमरे की सारी मसंदे छोड़कर उसके करीब बैठा हूं और पढ़ने या लिखने में मशगूल हूं और पढ़ने या लिखने में मशगूल हूं। मैं सर्दी के मौसम का नक्श अपने ज़हन में खींच ही नहीं सकता अगर आतिशदान ना सुलग रहा हो। फिर आतिशदान भी वही पुरानी रविश का होना चाहिए जिसमें लकड़ियों के बड़े बड़े कुंदे जलाए जा सके। बिजली के हीटर से मेरी तस्कीन नहीं होती, बल्कि इसे देखकर तबीयत चिढ़ सी जाती है। मालूम नहीं कि बहिश्त के मौसम का क्या हाल होगा। वहां की नहरों का जिक्र बहुत सुनने में आया है। डरता हूं कि कहीं गर्मी का मौसम ना रहता हो। The Muslim League also decided to resort to direct action for the achievement of Pakistan. 16th August 1946 was a black day in the history of India. Mob violence, unprecedented in the history of India, plunged the great city of Calcutta into an orgy of bloodshed, murder, and terror. Hundreds of lives were lost, thousands were injured, and property worth crores of rupees was destroyed. Processions were taken out by the League, which began to loot and commit acts of arson. Soon, the whole city was in the grip of the gundas of both the communities. अनानियती अद्वियात की कोई खास किस्म ले लीजिए, मसलन खुद नविश्त सवाने वारदात, और फिर मिसाल के लिए बगैर काबिश के चंद शख्सियतें चुन लीजिए, मसलन सेंट ऑगस्टीन, रूसो, स्ट्रिनबर्ग, टोल्स्टॉय, अनातोल, आंद्रे जीद। इनकी खुद नविश सवाने 6 मुख्तलिफ नौयतों की 6 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, लेकिन सबने यकसा तौर पर अद्वियात आलम में दायमी जगह हासिल कर ली। टोल्स्टॉय को उसकी अनानियत खुद उससे जितनी बड़ी दिखाई दी, दुनिया ने भी उसे उतना ही बड़ा देखा। पिछली सदी के आखिर और इस सदी के इब्तिदाई दौर में शायद ही वक्त का कोई मुसन्निफ इस खुद एतमादी के साथ मैं बोल सका जिस तरह यह अजीब व गरीब रूसी बोलता रहा। इसके खुद नविश्त सवाने जो एक बेरंग सादगी के साथ लिखे गए हैं, इसकी वॉर एंड पीस और इसकी ऐना करेना से कम दिल पजीर नहीं हैं। Now that the League had agreed to join the interim government, the Congress had to reconstitute the government and accommodate the representatives of the League. Regarding the portfolios, Lord Wavell had suggested that one of the major portfolios should go to a representative of the League. His own suggestion was that we should give up the Home Department. But Sardar Patel, who was the Home member, vehemently opposed the suggestion. I was for accepting Lord Wavell's suggestion. But Sardar Patel was adamant. He said
that if he insisted, he would rather leave the government than give up the Home Department. Soon he realized that he had played into the hands of the League by offering it the Finance Department. Whatever proposal he made was either rejected or modified beyond recognition by Liaquat Ali. Liaquat Ali's persistent interference made it difficult for any Congress member to function effectively. लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के फिर अंबार, लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के फिर अंबार, खबर करो मेरे खरमन के खोशाचीनों, मैं माफ़ी चाहूँगा, खबर करो मेरे खरमन के खोशाचीनों को। यहाँ कमरों की छतों में गौरैयों के जोड़ों ने जा बजा घोंसले बना रखे हैं। चंद दिनों बाद महमूद साहब को ख्याल हुआ इनकी भी कुछ तबासी करनी चाहिए। मुमकिन है गौरैयों की ज़बान हाल ने उन्हें तवज्जो दिलाई हो कि निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। ये सलाम गौरैयों और मीनाओं को तो मुर्तफिद ना कर सकी, अलबत्ता कौवों ने हर तरफ से हुजूम शुरू कर दिया। कभी इन कौवों को मैंने मेहमानों की तरह कहीं जाते नहीं देखा, तो फेलियों के गौर में भी बहुत कम दिखाई पड़े। हमेशा इस आलम में पाया कि फकीरों की तरह हर दरवाजे पर पहुंचे, सदाएं लगाई और चल दिए। फकीराना आए सदा कर चले, फकीराना आए सदा कर चले। In the meantime, the situation was deteriorating every day. The Calcutta riots had been followed by riots in Noakhali and Bihar. Thereafter, there was trouble in Bombay. The Punjab, which had been quiet till now, also showed signs of strain and conflict. Anti-Pakistan demonstrations were held in Lahore on 4th March 1947, which led to the death of 13 persons and injury to many. Communal disturbances spread to other parts of the province, and there were major disturbances in Amritsar, Takshila and Rawalpindi. On the one hand, communal passions were mounting. On the other, the administration was becoming lax. Europeans in the services no longer had their heart in their work. They were now convinced that within a short time, power would be transferred to Indian hands. As such, they were no longer interested in their work and only marked time. जब हम गुज़श्ता साल अगस्त में यहाँ आए थे तो सहन बिल्कुल चटियाल मैदान था। ख्याल हुआ कि बागबानी का मशगला क्यों ना इख्तियार किया जाए। जवाहरलाल फौरन कमर बस्ता हो गए। सितंबर और अक्टूबर में बीज डाले गए। दिसंबर के शुरू होते ही सारे मैदान की सूरत बदल गई और जनवरी आए तो इस आलम में आए कि हर गोशा मालन की झोली था, हर तख्ता गुल फरोश का हाथ था। जब सुबह के वक्त आसमान पर सूरज की किरणें मुस्कुराने लगती तो जमीन पर मॉर्निंग ग्लोरी की कलियां खिल खिलाकर हंसना शुरू कर देती। जीनिया के फूल रंग बिरंगे साफे बांधे नमूदार हो गए। ऐसा मालूम होने लगा जैसे पहरेदारों की सफे रंग बिरंगी पगड़ियां बांधे खड़ी हैं। इन तख्तों के दरमियान गुले खत्मी यानी कि होली लॉक्स का हल्का था।
ये रंग बिरंग के वाइन ग्लासेस हाथों में लिए खड़े थे। हर शाख इतने गिलास संभाले हुए खड़ी थी कि दिल अंदेशानाक रहता, कहीं ऐसा ना हो हवा की झोंकों की ठोकर लगे और गिलास गिरकर चूर चूर हो जाए। इन फूलों को मौसमी कहा जाता है। इन फूलों को मौसमी कहा जाता है क्योंकि इनकी पैदाइश और जिंदगी की सिर्फ मौसम ही तक महदूद रहती है। वह इनकी पैदाइश और जिंदगी सिर्फ मौसम ही तक महदूद रहती है। गोया जिंदगी का एक ही पहरहन उनके हिस्से में आया था, वही कफन का भी काम दे गया, वही कफन का भी काम दे गया। Lord Mountbatten took full advantage of the situation. He pleaded in favor of Pakistan and sowed the seeds of the idea in the minds of the Congress members. It must be placed on record that the man in India who first fell for Lord Mountbatten's idea was Sardar Patel. In fact, Sardar Patel was 50% in favor of partition even before Lord Mountbatten appeared on the scene. He was convinced that he could not work with the Muslim League. He openly said that he was prepared to have a part of India if only he could get rid of the Muslim League. किला अहमदनगर 17 मार्च 1943। सदीक मुकर्रम, आइए आज आपको चिड़िया चिड़े की कहानी सुनाऊं। गुज़श्ता साल जब अगस्त में यहाँ हम आए थे तो चिड़ियों की आशियां साजियों ने बहुत परेशान कर दिया था। दिन भर मैदान से तिनके चुनकर लाती, वो टेबल पर गिरकर उसे कूड़े करकट से अट देती। इधर पानी का जग भरवा के रखा, उधर तिनकों की बारिश शुरू हो गई। चंद दिनों तक मैंने सब्र किया, लेकिन फिर बर्दाश्त ने साफ जवाब दे दिया और फैसला करना पड़ा कि अब लड़ाई के बगैर चारा नहीं। यहां मेरे सामान में एक छतरी भी आ गई है। मैंने उठाई और ऐलान जंग कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम हो गया कि इस कुतादस्ती के साथ हरीफान सकफ व महराब का मुकाबला मुमकिन नहीं। अब किसी दूसरे हथियार की तलाश थी। बरामदे में जाला साफ करने का बांस पड़ा था, दौड़ता हुआ गया और उसे उठा लिया। अब कुछ ना पूछिए कि मैदान कार-ए-जार में किस जोर का रन पड़ा। कमरे में चारों तरफ हरीफ तवाफ कर रहा था और मैं बांस उठाए दीवानवार उसके पीछे दौड़ता रहा। आखिर मैदान अपने ही हाथ रहा। अब 11 बज रहे थे। मैं खाने के लिए चले गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो कमरे में कदम रखते ही ठिठक के रह गया। क्या देखता हूं कि सारा कमरा हरीफ के कब्जे में है। साफ नजर आ गया कि चंद लम्हों के लिए हरीफ को आजिज कर देना तो आसान है, मगर उनके जोशे इस्तकामत का मुकाबला करना आसान नहीं। और अब इस मैदान में हार मान लेने के सिवा कोई चारा-ए-कार नहीं रहा। When Sardar Patel was convinced, Lord Mountbatten turned his attention to Jawaharlal. Jawaharlal reacted violently against the idea of partition. Lord Mountbatten persisted. Within a month of Lord Mountbatten's arrival in India, Jawaharlal, the firm opponent of partition, had become, if not a supporter, then at least a quiescent to the idea. I have often wondered how Jawaharlal was won over by Lord Mountbatten. He is a man of principle.
but he's also impulsive and very amenable to personal influences. I think one factor responsible for the change was the personality of Lady Mountbatten. मेरी उम्र 17 बरस से ज्यादा ना होगी, लेकिन उस वक्त भी तबीयत की उफ्ताद यही थी कि जिस मैदान में कदम उठाइए पूरी तरह उठाइए और जहां तक राह मिले बढ़ते ही जाइए। उस जमाने का एक वाकया है कि आगरा के सफर का इत्तेफाक हुआ। रात को सितार लेकर ताज चला जाता, फिर ज्यों ही चांदनी फैलने लगती सितार पर कोई गत छेड़ देता, चांद बढ़ने लगता, सितारे दीदे फाड़ फाड़ कर तकने लगते, मीनारें अपने कांधों को जुम्बिश से ना रोक पाती। इस आलम में बारहा मैंने बुर्जियों से बातें की हैं, इस आलम में बारहा मैंने बुर्जियों से बातें की हैं। जब कभी ताज के गुंबदे खामोश की तरफ नजर उठाई है तो उसके लबों को हिलता हुआ पाया है, उसके लबों को हिलता हुआ पाया है। I also asked Lord Mountbatten to take into consideration the likely consequences of the partition of the country. Even without partition, there were riots in Calcutta, Noakhali, Bihar, Bombay and the Punjab. Hindus had attacked Muslims and Muslims had attacked Hindus. I said to Lord Mountbatten, if the country was divided in such an atmosphere, there would be rivers of blood flowing in different parts of the country, and the British would be responsible for such carnage. Without a moment's hesitation, Lord Mountbatten replied, at least on this one question, I shall give you complete assurance. I shall see to it that there is no bloodshed and riot. I am a soldier, not a civilian. Once partition is accepted in principle, I shall issue orders to see that there are no communal disturbances anywhere in the country. The whole world knows what the sequel to Lord Mountbatten's brave declaration was. When partition actually took place, rivers of blood flowed in large parts of the country. Innocent men, women, and children were massacred. The Indian army was divided, and nothing could be done to stop the murder of innocent Hindus and Muslims. हिंदुस्तान ने मौसीकी के मामले को गहराइयों तक पहुंचा दिया। हक ये है कि कदीम तमद्दुन में से कोई भी तमद्दुन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद में राग के जरिए शिकार करने के तरीकों का जिक्र किया है। वो खुद अपना मुशाहिदा नकल करता है कि शिकारी ने हिरन को हाथ से पकड़ लिया था और हिरन में भागने की कुव्वत बाकी नहीं रहती थी। वो हिंदुओं का यह कौल भी नकल करता है कि अगर एक शख्स इस काम में पूरी तरह माहिर हो तो उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ने की भी जरूरत पेश ना आए। वो शिकार को जिस तरफ ले जाना चाहे सिर्फ अपने राग के जोर से ले जाए। हिंदुस्तान में मशहूर है कि अगर कोई मुसाफिर बंदरों के गोल में फंस जाए और रामायण के वो हिस्से जो हनुमान के मध्य में लिखे गए हैं पढ़ने लगे तो बंदरों से उससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। सितार की मश्क
4-5 साल तक जारी रही। और अब तो गुजरे हुए वक्तों की सिर्फ एक कहानी बाकी रह गई है, सिर्फ एक कहानी बाकी रह गई है। On 30th January 1948, I went to Gandhiji at 2:30 p.m. I sat with him for over an hour. I then returned home at about 5:30. I suddenly remembered there were some important points on which I had not taken his advice. I went back to Birla House and to my surprise found that the gates were closed. Thousands were standing on the lawn and the crowd had overflowed into the street. I could not understand what the matter was. The doors of the house were also bolted. An inmate saw me through the glass pane and came out to take me in. As I was entering, someone said in tears, "Gandhiji has been shot and is lying senseless." The news was so shocking and unexpected that I could hardly comprehend the meaning of the words. I had a dazed feeling and walked up to the Gandhiji's room. His face was pale and his eyes were closed. His two grandsons held his feet and were weeping. I heard, as if in a dream, "Gandhiji is dead." मेरी बीवी की तबीयत कई साल से अलील थी। जुलाई 1942 की आखिरी तारीख थी। 3 हफ्ते के बाद कलकत्ता वापस हुआ और फिर 4 दिन के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास से बंबई के लिए रवाना हो गया। इन 4 दिनों के अंदर मैं इस कदर कामों में मशगूल रहा कि हमें आपस में बातचीत करने का मौका बहुत कम मिला। 3 अगस्त को जब मैं बंबई के लिए रवाना होने लगा तो वो दरवाजे तक खुदा हाफिज कहने के लिए आई। वो खुदा हाफिज इसलिए नहीं कह रही थी कि मैं सफर कर रहा था, वो खुदा हाफिज इसलिए कह रही थी कि वो सफर करने वाली थी। बिलाखिर 9 अप्रैल को जहर गम का ये प्याला लबरेज हो गया। हमारी 36 बरस की अज़दवाजी जिंदगी खत्म हो गई। मौत की दीवार हम दोनों में हायल हो गई। हम अब भी एक दूसरे को देख सकते हैं, मगर उस दीवार की ऊंट से, उस दीवार की ऊंट से but she is in her grave, and oh, the difference to me. But she is in her grave, and oh, the difference to me.
दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इन बातों को, मौलाना की इन बातों को आपने इतने सब्र के साथ और इतनी मोहब्बत के साथ सुन लिया। अब मैं स्टेज पर डॉक्टर एम सईद आलम साहब को बुलाना चाहता हूं, क्योंकि ये नाटक इन्हीं का तसव्वुर है, इन्हीं की कल्पना है। डॉक्टर एम सईद आलम साहब, कहीं अहमदनगर जेल तो नहीं पहुंच गए आप? मैं एक अनाउंसमेंट और कर दूं, ये इस प्ले का हमें सादत हासिल हुई है कि इस प्ले का पहला शो हैदराबाद में मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज वेलकम टॉम ऑल्टर साहब एज मौलाना आजाद। टोपी पहनाने में आपको महारत हासिल है, टोपी पहनाने में आपको महारत हासिल है। आप इसे इत्तेफाक जरूर कह सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है, लेकिन 100% सच है कि मौलाना आजाद और टॉम ऑल्टर की शक्लें हैरत अंगेज तौर पर, बल्कि मैं एक जुमला टॉम साहब का दोहराऊं, टॉम साहब और मौलाना आजाद की शक्लें हैरत अंगेज तौर पे एक दूसरे से बहुत मिलती हैं। लेकिन सिर्फ शक्लें, अकलें नहीं, सिर्फ शक्लें। प्लीज वेलकम वाबिक ज़िया एज हुमायूं कबीर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इत्शाम साहब, बहुत शुक्रिया। लुत्फअंदोज हो रहे थे इस ड्रामे से। मैं दरख्वास्त करता हूं अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर एसएम रहमतुल्लाह साहब से कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारे जो मेहमान आर्टिस्ट हैं उनका उनके मिजाज में हदिया गुल पेश करें। मैं आवाज देता हूं हिरा से कि वो आए और टॉम ऑल्टर साहब की खिदमत में हदिया गुल पेश करें। आज के हुमायूं कबीर जनाब वामिक ज़िया साहब की खिदमत में हदिया गुल पेश करने की दरख्वास्त करता हूं अपने रजिस्ट्रार प्रोफेसर एसएम रहमतुल्लाह साहब से। इस ड्रामे के डायरेक्टर डॉक्टर सईद आलम साहब, इसके साथ ही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आज का ये लम्हा हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके जहन में नक्श हो जाए। इसके लिए दरख्वास्त करता हूं अपने स्टूडेंट से कि एक यादगारिया टॉम ऑल्टर साहब की खिदमत में पेश करने के लिए जो रजिस्ट्रार साहब पेश करेंगे हमारे मेहमान आर्टिस्ट टॉम ऑल्टर साहब की खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आया नाटक? बहुत बहुत बहुत। अभी इंशाल्लाह मैं कुछ बोलूँगा, बात करूँगा। इससे पहले भी देखा हमने, लेकिन ये अलग चीज़ है। हाँ ये अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़। वो पूरा नाटक था ये। इसी हाल में। जी जी, मुझे याद है। हो। मैं इस डायरेक्टर डॉक्टर सईद आलम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ लाएं। रजिस्ट्रार साहब हमारे आज के मेहमान जनाब टॉम मटल साहब की खिदमत में यादगारियां पेश करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वामिक ज़िया साहब की खिदमत में यादगारी पेश
करेंगे हमारे रजिस्ट्रार साहब, जो आज हुमायूं कबीर साहब के किरदार में थे। क्या बात है। इस तारीखी ड्रामे के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर सईद आलम साहब की खिदमत में हदिया गुल और यादगारियां पेश करने की दरख्वास्त करता हूं अपने रजिस्ट्रार प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह साहब से। मैं आज इस प्रोग्राम के सदर और हमारे रजिस्ट्रार प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने सदारती कलमात से हम सबको सरफराज करें। प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह साहब। हाज़रीन, जब से ड्रामा शुरू हुआ मैं तवज्जो चाहता हूँ, मुझे ये कहा गया कि जनाब टॉम ऑल्टर साहब आ रहे हैं। ड्रामा जब से शुरू हुआ मैं उनको तलाश कर रहा हूँ, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहे। बाद में बस बात कर रहे हैं। वॉल्यूम प्लीज। नजदीक से। हेलो, सुन रहे हैं आप? हाँ, अभी मैं कह रहा था, मुझे ये कहा गया कि जनाब टॉम ऑल्टर साहब आ रहे हैं। जब से ड्रामा शुरू हुआ मैं उनको तलाश कर रहा था, कहीं वो नजर नहीं आ रहे थे मुझे। शायद आप कहीं उनको देखा है तो मुझे बता दें, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ मौलाना आजाद ही आजाद थे और कोई नहीं था। मैं उनकी खिदमत में हम सब की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई अदाकारी नहीं हो सकती। और इससे पहले भी इसी हाल में आपका एक ड्रामा हुआ था। उस वक्त उनको देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो दिली तमन्ना थी कि मैं मौलाना आजाद को देखूं, वो पूरी होगी। इसी तरह हुमायूं कबीर का जो किरदार आपने निभाया वो भी काबिल तारीफ है और काबिल तस्कीर है। डायरेक्टर साहब के तो क्या कहने, वो जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अनोखा कॉन्सेप्ट। दो मुख्तलिफ किताबें, दो मुख्तलिफ मौज़ूआत, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान की तारीख और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलग किस्म के मौजूद।